संसार में सारी बीमारी खाने से होती है. Everything you crave for can be traced back to what kind of depression you have. Hypothyroidism, PCOS, PCOD, diabetes. The maximum death globally is due to Dr. Shailendra Chaube is a qualified Ayurvedic practitioner. With over 15 years of experience, he specializes in treating chronic diseases using Ayurvedic therapies. सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं. द रूट कॉज ऑफ एनी हेल्थ इशू विल बी इन वन ऑफ दीज 3 P's. द फर्स्ट P stands for In today's What the Health podcast, he will discuss lifestyle diseases and how you can reverse these chronic diseases with the help of Ayurveda. There are people who come to me and in their early 30s, they have high blood pressure and they are taking medicine. कोई भी डिजीज होने के लिए स्त्रोतो अवरोध बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लॉकेज ऑफ द चैनल, स्त्रोतस में अवरोध आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, वो एक डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं. और हम बहुत बार ब्लेम कर देते हैं, अरे मेरी फैमिली में तो डायबिटीज है, मुझे भी होना ही है. You need not be with diabetes for lifetime. WHO has declared that diabetes is reversible. When you start to develop a condition like this, the first thing you need to pay attention is क्या ये सिर्फ डायबिटीज के लिए है या ये सीधा सीधा बाकी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस पे भी अप्लाई? This is like really spilling the beans or kind of telling the secret. Hi Vicky, wonderful seeing you. Before we move ahead, 94% of you who watch What the Health do not subscribe the channel. Let's change that. Subscribe Traya Health today so that we can bring more experienced guests to the podcast and bust myths for you. शैलेंद्र जी, लाइफस्टाइल डिजीजेस होते क्या हैं? कैसे, किन बीमारियों को आप कहेंगे कि ये लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं? Lifestyle diseases can range from digestion, simple digestion problems, acidity, IBS, to even severe conditions like weight gain, asthma, obesity, PCOD, a lot of problems that they say are stress induced. Your blood pressure, like it's by and large a lifestyle disease. Your raised sugar level is a lifestyle disease. Being diabetic is a lifestyle condition. Weight problems is a lifestyle condition, and a lot of hormonal imbalances, including hypothyroidism, is a lifestyle disease. सलोनी जी, जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उन्हें 3 कैटेगरीज में डाल सकें, आई हैव दिस फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग 3 P's. ओके, सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को हम 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं. द रूट कॉज ऑफ एनी हेल्थ इशू विल बी in one of these 3 P's. Okay. The first P stands for pattern. The patterns we follow. So a lot of health problems are byproduct of the patterns we follow. Other health problems are byproduct of the physiological imbalances that happens internally, right? That's the second P. And the third P has got to do with, like, they are rooted, health issues are rooted in the personality of the person. As you speak about lifestyle, there are so many conditions which are byproduct of the kind of pattern we have started to follow. So as much it may be genetic, while there are some predisposition factors, genetic होते हुए भी आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करती है कि आप को वो कंडीशन इम्पैक्ट करेगी या इम्पैक्ट नहीं करेगी. सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट और अ लॉट ऑफ रीजन फॉर अ पर्सन्स वेलबींग और देयर हेल्थ इज हिडन इन द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दे हैव. आई थिंक अनदर वे ये बोलने का, इसका एक अलग तरीका हो सकता है कि चाहे आपको जेनेटिक डिस्पोजिशन हो या ना हो, बहुत कुछ आपके हाथ में है. Almost a lot, like to a large extent. हाँ, और हम बहुत बार ब्लेम कर देते हैं, अरे मेरी फैमिली में तो डायबिटीज है, मुझे भी होना ही है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते. नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसे केसेस देखते हैं कि अगर मान लीजिए फैमिली में भी हो, तो फादर को उनकी डायबिटिक डिटेक्ट हुई होगी व्हेन दे वर इन देयर 60s, लेकिन उनके
जो बच्चे हैं, लाइक द सन और द डॉटर, उनको 35 साल में, 40 साल में उनको उनके शुगर लेवल बढ़ गए. There are people who come to me and in their early 30s they have high blood pressure and they are taking medicines and they say that it's in their family, right? But इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें इतनी जल्दी हो जाना चाहिए था. So the lifestyle that they are following has a big role to play there. सो शैलेंद्र जी, सबसे पहले लेते डायबिटीज. मुझे रिसेंटली पता चला दैट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि 136 मिलियन इंडियंस प्री डायबिटिक है एंड अराउंड 100 मिलियन इंडियंस डायबिटिक है. Wow. इनफैक्ट इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया. सो हमें बताइए कि आयुर्वेद में डायबिटीज के बारे में क्या बताया गया है, या आपके पास जब कोई डायबिटिक पेशेंट आता है आप कैसे डायग्नोज करते हैं और कैसे हैंडल करते हैं? पहली बात, जो मॉडर्न कंडीशन, लाइक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, दैट बीइंग डायबिटिक और उसके आयुर्वेदिक कोरिलेशंस एकदम एज इट इज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदा में कुछ कंडीशंस हैं, मधुमेह है, प्रमेह है. वहाँ पे जब ऐसे डिस्कशंस हुए हैं इन कंडीशंस के बारे में, वहाँ पे ढेर सारे सिम्टम्स जो डायबिटिक लोगों में मौजूद होते हैं, वही सिमिलर वो सारे सिम्टम्स हमें प्रमेह के या मधुमेह के कंडीशंस में दिखाई देते हैं. उसको आधार बना करके हम इस बातचीत को आगे ले जा सकते हैं कि आयुर्वेद ये पैथोजेनेसिस को किस तरह से देखता है और इसके ट्रीटमेंट को किस तरह से देखता है. सो हमारी पहले भी जब बातचीत हुई थी तो हमने ये बात समझने की कोशिश की कि आयुर्वेद मानता है कि सब कुछ पंचभौतिक है, मीनिंग एवरीथिंग दैट इज देयर इन द एग्जिस्टेंस इज फ्रॉम दीज 5 एलिमेंट्स: आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी. सो वो ये मानता है जब इन तत्वों के कुछ इम्बैलेंसेस हो जाएं तो अलग अलग तरीके के इम्बैलेंसेस अलग अलग कंडीशंस को पैदा करते हैं. दे गिव राइज टू डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स, प्रॉब्लम्स. सो हमारे शरीर में जब जल और पृथ्वी महाभूत का प्रादुर्भाव हो जाए, यानी वो एक्सेस में आ जाए, तब वो सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक डायबिटिक रोगी एक्सपीरियंस करता है. तो फिर हम अगर पंचभौतिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये शायद से बाउंसर चला जाए कि ये आकाश, अग्नि, वायु, जल ये सब क्या है. लेकिन इसे अगर हम हमारे फूड के लैंग्वेज में बात करें या टेस्ट के लैंग्वेज में बात करें तो हमें पता चलेगा कि जो डायबिटीज़ है, जो शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर के एक्सेस या इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है, वो जो शुगर है, वो जो स्वीटनेस है, वो खुद अगर उसको पंचभौतिक लेवल पे उसको एग्जामिन करना होता है तो आयुर्वेद कहता है जो मधुर रस है, जो स्वीट है, वो पृथ्वी और जल महाभूत के एक साथ होने से वो बनता है. और जब आप वैसे खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, व्हेन द ingestion of the food which is high in these qualities, when you consume that in a quantity or in combinations where your agni is not able to convert it into energy and nutrition and store it, then it leads to such problems. शैलेंद्र जी, जब भी मैंने आपसे बात की है किसी बीमारी, कोई प्रॉब्लम लेके मैं आई हूँ आपके पास, आपका पहला सोल्यूशन हमेशा फूड की तरफ जाता है. Alright. आपने ऑब्जर्व किया है? आप So I feel that has come to me from my own understanding, Saloni ji. What I personally believe that our bodies, the first interaction after air is with food, with what you eat and drink. And maybe that is the first thing that will decide how your body is going to feel. Not just that, when I have started to put that in practice, इसे जैसे ही अप्लाई करने लगा हूँ मैंने देखा है कि इतने ढेर सारे जो कंडीशंस हैं, सो कॉल्ड कंडीशंस, जिन्हें कई पैथीज इरिवर्सिबल मानती हैं या बहुत सीवियर मानती हैं, वो एक सही तरीके के हीलिंग फूड को
प्रैक्टिस करने से ही ना ही जस्ट सिर्फ कंट्रोल हो जाते हैं, वो रिवर्स भी होने लग जाते हैं. सो फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. आई कंप्लीटली अग्री विद यू शैलेंद्र जी. आप बताइए कि डायबिटीज के लिए शॉर्ट में आयुर्वेद में कुछ कहा गया है कि खाने से कैसे इसे. और बहुत कुछ कहा गया है आयुर्वेद में. बहुत इंटरेस्टिंग आयुर्वेद की मुझे जिस बात ने इंस्पायर किया है वो ढेर सारी चीज़ों को समझाने के लिए एनालॉजीज यूज़ करते हैं. ओके, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, जैसे जो डायबिटिक हैं, जिसको प्रमेह है या मधुमेह है, उनको किस तरह की एक्टिविटी करनी चाहिए, राइट. सो उन्होंने कहा कि जिनको मधुमेह है उन्हें कुआं खोदना चाहिए. लाइक हम ऐसा कहें कि अगर डायबिटीज़ है तो कुआं खोदने की क्या ज़रूरत है. वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप कुआं खोदते हैं, राइट, लाइक वो सिर्फ आप विजुअलाइज करिए दैट यू हैव टू डिग अ वेल and the kind of energy that you're going to put in digging a well. So what Ayurveda is trying to say, when you start to develop a condition like this, the first thing you need to pay attention is your physical workout. सिर्फ सिंपल सा ऐसे एक सुखासन कर ले और थोड़ा सा योगिक स्ट्रेचेस कर लेने से कुछ नहीं होगा. आई थिंक और बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग टहल रहे हैं और सोच रहे वो इनफ है. मुझे आई रियली वांट टू टेक दिस प्लेटफॉर्म एज अ मीडियम टू से टहलना, वॉक करना एक्सरसाइज नहीं है. इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ, बट प्लीज स्टॉप कंसिडरिंग दैट एज एन एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के लिए आपको अपने और डीपर लेवल पे मसल्स के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत होती है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत होती है, उन्हें होल्ड करने की ज़रूरत पड़ती है. सो वॉकिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, टहलना इज़ गुड. सो तो उनकी जो पहली एनालॉजी है कि आपको अगर इसे कंट्रोल करना है, ठीक करना है, तो आप कुआं खोदने जैसी वर्कआउट करिए, वो भी रोज. यानी कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगनी चाहिए. सो जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे जो योगिक सूर्य नमस्कार है वो अपने आप में एक तरह का रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है, जहाँ पे आप अपने खुद के वेट के साथ वर्कआउट कर रहे हैं. और जो भी सूर्य नमस्कार जानता हो कैसे करना, अगर वो उसे ब्रेथ कोऑर्डिनेशन के साथ में बहुत स्लोली कर सकें, वो पाएंगे कि उन्होंने अपने बॉडी के अंदर एक ऐसी अग्नि को एक्टिवेट कर दी है जो माउंस लेवल पे, जो मेद लेवल पे है, जो ये डिपोजिशन जो है पैथोजेनेसिस को ब्रेक करती है. तो पहली बात हमने शुरू की कि एक्टिविटी के बारे में उन्होंने क्या कहा है. उन्होंने कई जड़ी बूटियां, हर्ब्स वगैरह यूज़ करने की बातचीत की है, जिसमें आंवला सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है. दूसरी ऐसे हर्ब्स जिनका जो रस है वो कटु, तिक्त, कषाय रस का है. यानी इट हैज़ टू बी बिटर, पंजेंट और एस्ट्रिंजेंट इन टेस्ट. हमने ढेर सारे वो जामुन की बात सुनी होगी कि जामुन की गुठलियाँ, इट्स हल्दी की बात सुनिए, आंवला, ये सब आंवला और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल है टू स्टार्ट टू वर्क ऑन कंट्रोलिंग द डायबिटिक कंडीशन. त्रिफला के यूज़ बताया है. हर्ब्स के बारे में बहुत ढेर सारी अलग अलग चर्चा है, डिपेंडिंग कि कौन से कैटेगरी में है, फिर उसमें भी वातज, पित्तज, कफज. दैट्स डीपर, वी विल नॉट गो इनटू दैट. बट व्हेन इट कम्स टू grains, when it comes to food, there is a very specific grain that they have mentioned. They use the word called jaw, means yav, that's barley. The reason I investigated was that the glycemic load of barley is pretty low, and when used with a fiber, it is very helpful to further activate the metabolism and the agni. Now, if you see at our plate, हमारा जो खाना आता है हमारे पास, the biggest culprit somehow, not that it is, but it's maybe our fault, the way we have used wheat and rice. और The वो kind of मैक्सिमम पोर्शन ऑफ प्लेट. maximum हमारा जो खाना है, सब कुछ अगर ग्रेन बेस्ड भी है तो आपकी
रोटी और चावल का क्वांटिटी इतना ज़्यादा है. Not just that, the hidden way wheat has entered our lives through the biscuit, naan, parathas, cookies, everything from maida that is loaded with sugar. उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई है. सो सबसे पहली बात, जो भी अपने शुगर लेवल पे या डायबिटीज़ जैसे कंडीशन पे वर्क करना चाहते हैं, वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उनके फूड में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड कौन सा है. और हर कैटेगरी में, ग्रेन कैटेगरीज में कौन से फूड हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, पॉलिश्ड राइस करके, खास करके कॉर्न हो गया, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले ग्रेन्स हैं. वेजिटेबल कैटेगरी में पटेटोज, जो स्वीट पोटैटो जो स्टार्च बेस्ड हैं, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हायर है, उसको बहुत स्ट्रिक्टली अगर रेस्ट्रिक्ट कर सकें. इसी तरह से वो अगर हर कैटेगरी में देखेंगे. ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आयुर्वेद जो पैथोजेनेसिस को जिस तरह से वो देखता है, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, शायद हम आज इसको डिस्कस करेंगे, स्त्रोतोरोध, मीनिंग ब्लॉकेजेस ऑफ द चैनल्स. वो स्त्रोतस अवरोध बढ़ाने वाले जो फूड हैं, जिसे वो अभिसंधि मानता है, मीनिंग इट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ फ्लेम and creates obstruction in the body. Certain food fall in these categories. It's called abhisandhi food. They are all kinds of fermented dairy, all kinds of fermented grains. So आपके जो इडली, ढोकला, डोसा, ब्रेड, ये सारे अभिसंधि होंगे. They will be obstruction causing in the system. Curd and curd से बनी हुई चीजें will be obstruction causing. That's one category. Then fish, seafood, a lot of seafood are obstruction causing. Now, I don't want the audience to get confused with the nutritional value fish has versus this property it has. Okay, what I'm speaking right now is purely from the Ayurveda perspective and completely holding on to the Ayurveda angle of resolving a certain condition. आई थिंक सब कुछ हेल्दी है, सब में न्यूट्रिशन वैल्यू है, बट आपकी बॉडी किस लाइफस्टाइल इशू से इज गोइंग थ्रू. सो मे बी अ हेल्दी पर्सन नीड्स अ हेल्दी न्यूट्रिशनल डाइट, बट अ person who has diabetes needs a healing diet. Absolutely. Like I was reading, even like with all due respect, Gandhi ji had said, you are what you eat, right? And I have been telling people that's partially correct. It's largely now wrong. You are what you digest. So, this is an amazing thing about Ayurveda, what it is trying to tell people through examining their Agni, through examining in the Vikruti Pariksha, when we examine person, in the assessment, what we try to examine is what is your capacity right now, right? So bal, एक बहुत ही, bal meaning strength, ये बहुत ही important aspect है आयुर्वेदा का. when we look into treating a certain condition, what is your physical strength like, what is your mental emotional strength like, what is your Agni bal, आपके अग्नि का बल कितना ज्यादा अच्छा है. Because that will not just only decide, Saloni ji, the food, it will also decide your medicine. Can you imagine here, they want to consider the medicine that has to be given, has to be based on your digestive capacity. So ऐसा नहीं है कि एक डायबिटीज की दवाई है और वो हर कोई ले ले. एक कैटेगरी है, लेकिन उसमें भी बहुत ढेर सारे सब डिवीजन है. और ये सही है कि एक ऐसी गोली नहीं है या दवाई कि आप ये ले लो और आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी. ऑन द कॉन्ट्ररी, जिन्हें भी ये बिलीफ है कि दवा ले लेने से उनकी डायबिटीज ठीक होगी, अनफॉर्चुनेटली वो कभी ठीक नहीं होंगे. द सूनेस्ट दे रियलाइज कि फूड को करेक्ट करते ही, एंड I can almost very closely guarantee that in 3 to 6 months, they can see not just control, tremendous reversal. And I'm not saying, this recently I learned that WHO has declared that diabetes is reversible. You need not be with diabetes for lifetime, right? So we are in a great age and time where
maybe India should not be the capital of, like, not that any country should be, but we can largely work on this whole thing and introducing a very simple protocol. And there exists a protocol. We are using such protocols where it can start to activate the Agni, start to break the patterns which has led to such pathogenesis. And आप फिर से it can 3 be- P's आ रहे हैं यहाँ पे. right, yes. सो बताइए कि डायबिटीज के सोल्यूशन में ये 3 P's कैसे यूज कर सकते हैं? डायबिटीज के सोल्यूशन में जो 3 P's हैं, पैटर्न, फिजियोलॉजी एंड पर्सनालिटी. तो हर P पे देयर इज अ वे हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट. इंटरवेंशन, वहां पे इंटरवेंशन की क्या जरूरत पड़ेगी. सो एट द लेवल in the pattern, when there is a problem in the pattern, the intervention that is needed is modify. Like, while we follow a lot of patterns, but there are few very basic and most important patterns which decide your health, well-being and your vitality. Okay, so what are these patterns? The first pattern is your wake up and sleep. There is a lot of work done where what time you're sleeping and the quality of your sleep begins to decide your hormones. Diabetes is a hormonal problem. So the first pattern that needs to be modified is the waking up and the sleep. The second pattern is that of your ingestion. आप खाना कब खा रहे हैं. So इसके भी ऊपर आयुर्वेद ने इतना क्लियरली बताया हुआ है कि रोग होने के जो कई प्रॉब्लम हैं वो इस वजह से हैं. जैसे मुझे कुछ श्लोक के कुछ पंक्तियां, वर्ड्स याद आ रहे हैं कि अजीर्णात, अध्यशनात, अति भोजनात, यानी आपने पहले का खाना नहीं पचा हुआ है. अजीर्णात यानी अजीर्ण होने पर खा लिया. अध्यशन यानी कम खा लिया या ज्यादा अति भोजन कर लेने से, या you have created too much a gap, or you have been eating too frequently. This pattern needs to be worked upon, and in that also what specifically you're eating. Then the pattern of your activity. There are 5 patterns which we need to work on: sleep, food, then comes activity, then your rhythm, bowel movement patterns, right? कि आपके bowel movement, your gut health, very specifically the bowel movement के pattern कैसे. And on closely looking, there is the 5th pattern that impacts. It's your breath, how you're breathing, because your breathing has a direct impact on your metabolism. That is the reason why in yoga the kriyas like Kapalbhati, Bhastrika, they have played a very vital role, which integrates breath and a certain body or organ movement. These kriyas, they work on activating the Agni, not just at the jathar, at the gut level, but also at the cellular level. We call it the Dhatu Agni. So there are these processes which just help improve the overall Agni and help improve the elimination. So, like, as you solve the problem of accumulating, you have by and large solved the problem of this condition. जी. आई थिंक आपने इतने अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया. अगर कोई समझ ले कि ये पैटर्न्स 5 कितने जरूरी है तो सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा. There are organizations which have identified and they are largely working on these principles. सो शैलेंद्र जी, मुझे ये बताइए वेट और डायबिटीज का क्या कनेक्शन है? बिकॉज दूसरी एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी हो गई है इज Right. वेट मैनेजमेंट. So जिस तरह से एक हमारे ब्रीदिंग का और हार्ट रेट का एक सिंक्रोनिसिटी है, एक रेशियो है कि अगर आप 1 मिनट में 14 से 16 बार सांस लेंगे, ओके, आपकी 1 मिनट में उतनी बार सांसें चलेंगी, तो आपकी पल्स रेट 60 to 80 के बीच में होगी. ब्रेथ की रेट अगर बढ़ जाएगी तो आपके पल्स की रेट भी बढ़ेगी. देयर इज अ रेशियो लाइक दैट. सिमिलरली देयर इज अ रेशियो कनेक्शन with being at a certain weight and the sugar level in the body. So
एविडेंस बेस्ड वर्क हैज बीन डन. जो भी 1 किलो वजन कम करते हैं वो अपने 10 यूनिट रेज शुगर लेवल को नीचे गिरा सकते हैं. तो ये सोचिए, किसी का अगर शुगर लेवल 100 यूनिट मोर देन नॉर्मल है और वो अपने 10 किलो वजन को सिर्फ उतार लें, they will see that their sugar levels have come back to being normal. Very interesting. In fact, there are many people like ये बहुत ज़्यादा easily visible होता है. पेशेंट्स जो बेरियाटिक सर्जरी कराते हैं, जो बहुत ओवरवेट होते हैं और डायबिटिक भी होते हैं. सो मैं ऐसे कुछ पेशेंट्स को फॉलो कर रहा था और मैंने देखा दे वर डायबिटिक, लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्जरी और उनकी वजन कम होने लगी एंड दे हैड नॉट स्टार्टेड एनी काइंड ऑफ डायबिटीज मेडिसिन. शुगर कम करने की कोई मेडिसिन नहीं ले रहे थे, बेसिक फूड प्लान फॉलो कर रहे थे वो. उनका वजन पीरियोडिकली कम होते गया और उसी के साथ उनके शुगर लेवल्स भी कम हो गए. एंड नॉट जस्ट दैट, दे आर फ्री फ्रॉम being diabetic just by losing weight. However, what we are trying to say here, Saloni ji, that not just that only by losing weight, you many times if the condition grips you very deeply, weight loss will help, but don't begin to assume that you have to only lose weight. Might not be just good enough. Right. You But need more. it's a very big contributing factor. So if at all anyone is working on their sugar levels, हम सिर्फ वजन देखते हैं, but actually the most important component there is the fat, right? और पेट पे फैट. Exactly. I was just coming to that. Many times a lot of people are not highly overweight, but they have high visceral fat. और आई थिंक मेन में बहुत कॉमन है बिल्कुल जी. आ जाना. So जो visceral fat होता है वो फैट हमारे पेरिफेरल फैट से थोड़ा अलग होता है. उसकी जो इन्फ्लुएंस होती है हमारे हार्मोनल लेवल पे वो विसरल फैट से बहुत ज़्यादा अलग होती है. सो इनफैक्ट विसरल फैट हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारे हार्मोन्स को, नॉट जस्ट दैट, हमारे मूड को बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है. हमारे हंगर लेवल्स को, हमारे शुगर लेवल्स को, इंसुलिन लेवल्स को विसरल फैट बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है. So the real work maybe if it should not be so much on weight loss but specifically visceral fat loss. आई थिंक मेक सेंस. मैंने ये कहीं पे पढ़ा था कि अगर आपके 20s 30s में पेट के अराउंड बहुत फैट है, Right. तो आपकी 40% ज़्यादा चांसेस है कि कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज होगी. उधर स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए नहीं बोला था, Right. पर मल्टीपल लाइफस्टाइल डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस विसरल फैट से कनेक्टेड है. No, you are absolutely right that your visceral fat present along with any other condition, if it is blood pressure, if it is arthritis, if it is any other condition also, visceral fat interferes with its healing. आई थिंक जो आपने फूड के लिए बोला, राइट, अगर वो ही प्रिंसिपल्स कोई पर्सन जो वेट में ज़्यादा है यूज़ करे कि बार्ली की रोटियां खाने लग जाए, रोटी राइस कम कर ले और ग्रीन्स प्लेट में बढ़ा दे बिल्कुल. और right जी. डेयरी कम कर दे. कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इसे रिवर्स कर हाँ सकते जी, हैं. बोलिए. हम उनके बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहले कुछ फास्टिंग प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं. फास्टिंग आपके बॉडी में वो विंडो क्रिएट करता है जहाँ पे आपकी अग्नि, जो स्टोर्ड धातु हैं या अपक्व अन्न है, आहार रस है, जिसे हम कहते हैं इनडाइजेस्टेड फॉर्म, जो फूड आपके बॉडी ने स्टोर करके रखा हुआ है, जब एक सर्टेन आवर ऑफ फास्टिंग, डिपेंडिंग ऑन व्हाट प्रकृति यू आर, सबकी फास्टिंग की आवर्स अलग होनी चाहिए, होती हैं. आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो एक्टिवेट करती है आपके मेटाबॉलिज्म को. इसके रिवर्सल को आपकी फास्टिंग हेल्प करती है. आप आगे बढ़े उससे पहले मैं ये जो आपने कहा ना, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपकी विंडो, बिल्कुल. आप बोल के आगे निकल गए, पर ये इतना ज़रूरी है. मुझे याद है 2-1.5 साल पहले, मैं आपको याद है कि नहीं पता नहीं, मैंने आपको फ़ोन किया था, शैलेंद्र जी सब इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, मैं करूं क्या? राइट. और ये भी कहा था कि मुझसे नहीं हो रही है, जब मैं करने लगती हूँ मुझे एसिडिटी हो जाती है ये.
और आपने मुझे समझाया था कि मेरी प्रकृति के हिसाब से क्या विंडो होनी चाहिए फास्टिंग की और कितने इंटरवल हर में। विंडो की, हर प्रकृति की एक अपनी अग्नि होती है। सो विषम अग्नि है कि मंद अग्नि है या तीक्ष्ण अग्नि है, हमें अगर वो अग्नि की पहचान नहीं होगी तो अनफॉर्चुनेटली कई लोगों के लिए द फास्टिंग कन्वर्ट्स इनटू स्टार्विंग, एंड द मोमेंट बॉडी को अगर महसूस हो कि वो स्टार्विंग मोड में चला गया है, it will hold on to all its cells and tissues including the fat cells, then it will not let go of the fat cells. कुछ हम आई नो हमें इसे बहुत ही डम डाउन करना पड़ेगा, पर हम कुछ जो सुन रहे हैं, क्या हम कुछ बता सकते हैं जिससे उन्हें पता चले कि वो किस प्रकृति में और उस हिसाब से उन्हें ओके, सो बहुत अगर अग्नि को ही जांचना है, अपने अग्नि की परीक्षा करनी है, तो बहुत सिंपल तरीके से आप अपने अग्नि को एग्जामिन कर सकते हैं कि आपकी तीक्ष्ण अग्नि है कि सम अग्नि है या एकदम ही मंद अग्नि है। सो मैं अक्सर इस तरह से क्वेश्चंस पूछ करके देख लेता हूँ दैट जब आपको भूख लगती है, हाउ कंफर्टेबल आर यू टू स्किप द मील? So, are you comfortable to just delay it by 15-20 minutes? There are people, they say कि भूख लग गई, but I can wait for another 1.5 hour, which means it is not a tikshna agni. There are some people who feel hungry and then they will kind of start to lose it. हैंग्री They हो जाए। lose hungry, they lose focus. A lot of people, they experience famishedness and they are not able to concentrate. A lot of kind of things like that. So, जैसे यू जस्ट हैविंग वाटर, दिस इज यू कैन डू अ वाटर टेस्ट। आपको मान लीजिए भूख लग गई है, आप 1 कप पानी पी लीजिए। आपको अगर सिमिलर इंटेंसिटी ऑफ भूख 10 से 15 मिनट में लग जाए, तब जानिएगा कि आप तीक्ष्ण अग्नि के हैं, यानी आपकी वो भूख तीक्ष्ण अग्नि की है। अगर आपने 1 कप पानी पी लिया और आपको आधा घंटा लग गया भूख लगने में, तब जानिए कि आप सम अग्नि है, बैलेंस्ड अग्नि है। और अगर आपने पानी पी लिया और फिर आप भूल ही गए कि मुझे खाना था या भूख लगी थी, 1-1.5 घंटे बाद लगे, तब आप जानिए कि आपकी अग्नि मंद है। ओके ओके, उस हिसाब से आप डिसाइड करिए आपके फास्टिंग आवर्स। तो अग्नि जितनी लो होती है, फास्टिंग का विंडो उतना ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो आई अप्रूव एंड काइंड ऑफ आई want to support the concept of even fasting up to 18 hours for people who can sustain it with the Agni or who have trained themselves. So that we are talking about the Agni के ऊपर वर्क करना जो है, उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग की भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं था कि पहले उन्होंने रिचुअलिस्टिक फास्टिंग इंट्रोड्यूस किया सबके लिए, राइट? जैसे अभी मान लीजिए नवरात्रि आ जाए कि रोजे आ जाएं, उसमें उन्होंने, या जैनिज्म के जो अलग अलग फास्टिंग है, जब हम आयुर्वेद के हिसाब से बात कर रहे हैं कि अलग प्रकृति को इतनी आवर की फास्टिंग करनी चाहिए, इतनी आवर की फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, तो ये सारी प्रिंसिपल्स ऐसे रिचुअलिस्टिक फास्टिंग्स में कहाँ चले गए? देयर दे वेंट मोर डीपर। ओके, देयर दे वर्कड थ्रू ट्रेनिंग अ पर्सन। आप अपने विल के थ्रू, सस्टेनेंस के थ्रू अपने, जो वर्ड है कि हमने एक सर्टेन तरीके की सिद्धि हासिल कर ली। ओके, देयर इज अ फाइन लाइन डिफरेंस बिटवीन इम्पोजिंग समथिंग ऑन योरसेल्फ एंड इवॉल्विंग योरसेल्फ टू बी ट्रेन्ड एंड टू बिकम मास्टर ऑफ समथिंग, राइट जी? सो जो रेगुलर फास्टिंग करते हैं, कई लोग एकादशी को फास्टिंग करते हैं, कई लोग गुरुवार को करते हैं, शनिवार को, सोमवार को करते हैं, या कुछ लोग एक स्पेसिफिक आर के बाद खाते ही नहीं हैं, कोई लोग एक आसन मतलब सिर्फ एक ही बार खाना खाते हैं। वो चाहे कोई भी प्रकृति के हों, धीरे धीरे अभ्यास करते करते उन्होंने अपने आप को उतना ट्रेंड कर लिया, सो दैट द अग्नि कैन बी ट्रेंड। And the more trained your Agni is, the more a master you will be of yourself. वाओ। सो आई थिंक वो सारे लोग जो सोचते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग हमसे नहीं होती, क्योंकि मैं वहाँ थी और गिव अप कर देती थी। ट्रेन किया जा सकता है, सीखा जा सकता है, अपनी प्रकृति के हिसाब से स्टार्ट स्लो Absolutely. एंड देन
I'm reminded of one of my teacher master. He's been my guru, and he's no more in the body. So, but he would follow in the Vedic, the astrological space. So anyone who would go to him with problems in his life or her life, that Baba, he's called Dada Baba. So that I have this problem, and then he would do some reading and scanning, and his upay, the treatment he would give was fasting a certain week or a certain day of the week कि आप इस दिन fast करो. So one of the days I was present, and this gentleman or lady, I'm forgetting, was there, और बोले कि बाबा मैं करूँगी तो मैं तो एकदम ही बीमार हो जाऊंगी और ऐसे ऐसा हो जाएगा, मेरी पूरी तबीयत खराब हो जाएगी. So he was a man of very few words. He used to most of the time keep his eyes closed. So when the person was saying that, he just opened the eyes and looked at the person and said, संसार में सारी बीमारी खाने से होती है, नहीं खाने से कौन सी बीमारी हुई है, सिर्फ मुझे उसका नाम बता दो. And that went very deep, ji. And in our Ayurveda system, we have Langhan. Langhan means fasting, or everything that is reductionist in a certain way in the body. So that which reduces the excess, the imbalanced. Even if you break your fast, can you break it with something lighter only? And for the first few hours of the day, stick to eating something very light, like a simple fruit or some kind of dals, protein, like very light protein, chilla, egg whites, which are lighter in nature. So in a way, it's nourishing you and to some extent also largely supporting your Agni. शैलेंद्र जी, आपने इतनी अच्छे अच्छे सॉल्यूशंस बताए, स्लीप से लेके इंटरमिटेंट फास्टिंग तक. क्या ये सिर्फ डायबिटीज के लिए है या ये सीधा सीधा बाकी सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस पे भी Now, अप्लाई this is like really spilling the beans or kind of telling the secret, the trade secret. This fundamental principle of healing holds true for almost all metabolic conditions. जी. So, जैसे कि जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिक कंडीशंस जो होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म, पीसीओएस, पीसीओडी, ओवरवेट, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, ये सारे कंडीशंस को आप ना कि बस जस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं इन प्रिंसिपल्स को होल्ड करके. हाउएवर, जैसे अगर थायराइड की बात करें हम, वहाँ पे थोड़े से और स्पेसिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स यही रहते हैं. थायराइड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, जैसे Right. हमने डायबिटीज को समझा, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म भी मैं डेटा ढूंढ रही थी. अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, 42 मिलियन लोगों को हाइपोथायरॉयडिज्म है. जिन लोगों को थायराइड हो रहा है वो क्या, जो आपने प्रिंसिपल्स बताए उसके अलावा अगर कुछ स्पेसिफिकेशंस. उसी प्रिंसिपल्स पे थोड़ा सा और डीप जाना चाहिए. हाइपोथायरॉयडिज्म पे अगर वर्क करना है, आयुर्वेदा के जो प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं वो यकृत यानी लिवर की एफिशिएंसी, लिवर की एफिकेसी को बढ़ाने के जो भी टूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, वो हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं. सो ढेर सारे जो ग्रेन बेस्ड, ग्लूटेन बेस्ड जो फूड हैं, उनकी रिस्ट्रिक्शन से इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया जा सकता है. लेकिन साथ ही में कुछ हर्ब्स की भी ज़रूरत पड़ती है. अनलाइक डायबिटीज़ या रेस शुगर में कई बार आपको उतने मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म को अगर रिवर्स करना है विद आयुर्वेदा, तो वहाँ पे आप हर्ब्स को भी इंटीग्रेट कर सकें. तो क्योंकि वो थोड़े से और सटल लेवल पे उसका जो ग्रिप है, उसकी जो पैथोजेनेसिस है, इट गोज टू अ लिटिल मोर डीपर लेवल in the body or in impairing the physiology of the body. Now, let's also try to understand the second problem in reversing or controlling the hypothyroidism is the medicines of the hypothyroidism. Now, what happens is hypothyroidism की जो medicine थोड़े ज़्यादा लंबे समय तक ले लें, so आपके
खुद के बॉडी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सर्टेन ऑर्गन्स हैं, वो अपनी तरफ से काम करना कम कर देते हैं. They give up because they know that the medicine is going to help them. What I'm talking to you is in a very lay language, but somehow something like this happens inside. When you take those medicines, the Altroxin या जो आप थायरोनॉम या जो आप मेडिसिन लेते हैं, वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को डिपेंडेंट बना देते हैं. ये डिपेंडेंसी इज व्हाट कम्स इन द वे ऑफ रिवर्सल. इसीलिए जिनको यहाँ पे जब अगर क्रॉनिक हो जाए तो प्रॉब्लम होता है. सो जितना जल्दी शुरू किया जाए एग्जैक्टली. तो जितना, और नॉट जस्ट दैट, एक सर्टेन एज के बाद ऐसे कंडीशंस पे इवन विथ फूड और इवन विथ आयुर्वेदा ट्रीटमेंट इट बिकम्स अ लिटिल डिफिकल्ट. यू कैन कीप इट कंट्रोल्ड एंड मैनेज इट, बट देन द रिवर्सल may not be that assured. Yeah. हाँ, बट अगर आप यंग है और If you are younger, just recently detected, even if you have a strong family history, as you start to align your food, lifestyle, and your sleep, wake up, bowel movement, and begin with 5 some patterns. those 5 patterns as you like breath work, and with some simple Ayurvedic medicines which are very hepatotonics, like liver activating जो nature के हैं. होम रेमेडीज आप ले सकती हैं. ये सारी चीज़ों को रेगुलरली, लाइक सिंसियरली 6 to 12 वीक्स का अगर एक रेजिम बना ले, लाइक हम अगर ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, तो इन प्रोटोकॉल्स के रिजल्ट देने की एक शर्त है रेगुलैरिटी, कंसिस्टेंट. और थोड़ा टाइम लगता है, 5 दिन करके. ये आई फील कि somehow हम कई लोग हमारी जिंदगी को, हमारी लाइफ को हमने 6 दिन और 1 दिन में एकदम से बांट दिया है कि 6 दिन मैं इस तरह से जीऊंगा या जीऊंगी, इस तरह से खाऊंगा पीऊंगा, या और वो 7वां दिन है फिर मुझे कुछ मत बोलो, आज संडे है या आज के दिन, यानी देन यू बिकम एन एनिमी एज इफ यू हैव डन सम सिन, एंड पीपल फील दैट दे हैव बीन मोस्ट डिजर्विंग फॉर इट. व्हेन यू हैव सर्टेन कंडीशंस लाइक दिस, then you should get into a commitment zone, meaning आपने एक संकल्प लिया कि अब इतनी देर, इतने घंटे, इतने दिन इन चीजों से मैं दूर रहूंगा. So the real meaning of focus is not concentration जी. The real meaning of, like, you develop focus जब आपकी संकल्प शक्ति दृढ़ हो जाती है. According to a most recent survey, the focus span has deteriorated of average human being to just 15 seconds. So maybe I feel ऐसे practices हमारे संकल्प शक्ति को बढ़ा सकते हैं. We can regain the focus we need in our life. Got it. And in home remedies, क्या कोई ऐसी home remedy है जो आप suggest करेंगे hypothyroidism के लिए? Now, see, this should not be taken as a very specific treatment of hypothyroidism, but combinations of sont, pipali mool, ajwain, jeera, caraway also, star anise, हींग, मेथी, इनके सबके स्पेसिफिक कुछ कॉम्बिनेशंस करके अगर एज अ होम रेमेडी लिया जाए छोटे डोसेजेस में, लाइक लेट्स से इनका आपने इक्वल क्वांटिटी में भी अगर कॉम्बिनेशन बना दिया, 3 grams 3 times a day, if you take that, it will be very helpful to work on your agni and clear up the doshas. शैलेंद्र जी, आगे बढ़ते हैं. एक लाइफस्टाइल डिजीज जो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, which is PCOS. त्राया में जब विमेन हेयर लॉस के लिए आते हैं तो हम उन्हें क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आपको PCOS है. इसलिए मुझे डेटा फर्स्ट हैंड पता है कि इतनी सारी विमेन, स्पेशली जो हेयर लॉस प्रॉब्लम में इधर आती है, और ये नंबर बाकी स्टैट्स में भी दिख रहा है कि ये बढ़ते जा रहा है. बहुत लोगों का डिटेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो डायग्नोज नहीं करना थोड़ा डिफिकल्ट है. बट PCOS रिलेटेड अगर मैं उसे और हॉराइजन बड़ा कर दूं कि इनफर्टिलिटी इश्यूज अराउंड हार्मोन्स, तो ये विमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है. There are few reasons, and what I have seen clinically and
in interaction with a lot of cases, it's undernourishment, lack of nourishment plays a very big role in disturbing the hormones. But if we go to examine the food that we are eating, हमें ऐसा लगता है कि हम तो बहुत न्यूट्रिटिव फूड फॉलो कर रहे हैं, खा रहे हैं. Then how am I undernourished? There are two reasons of a person being undernourished. One is you eat a low nutritive value food. If your food is low nutritive, then it's understood, that's logical, that you will have some other problem. But if your food is sufficient in its nutritive value, then what would be the reason for undernourishment? The gut. Right? Very specifically, your absorption. So in the gut, when your absorption is disturbed, so what I have seen is a woman's body, right from menarche to menopause, it can be divided into different verticals at different age. It's largely only governed by hormones, right? It's only hormonal play, which means hormones must be so much dependent on the right nutrients. We have learned from very reputed pediatricians. They have said and they have instructed the mothers that their daughters have been getting early periods, or they are the menarche in the girls has like come to age 9, 10, 11, 12, right? Earlier, which used to be the onset of periods would be 13, 14 or onwards. One big reason has been food, and specifically milk. The milk that we have been consuming, because it is hormonally induced. So that hormone, even in small quantity, impacts the development, etc. At the same time, it is also a period. It is that time and age where a girl is going through intense phase of change. So the stress levels are extremely high, body is changing. There are so many changes that's happening on many levels, which means the coping dimension has multiplied, right? If you have to cope with a lot of problems at the same time, you are over invested. So that depletes you. At the same time, if your absorption is impaired, right? Like you're not able to absorb the food properly. And if we have to also somewhere examine the kind of food we have been eating, ji, our culture by and large has become fast food culture. Meaning, ज़्यादा when we बाहर look खाने at लगे हैं. उतना ही नहीं, आप ज़्यादा तो आप बाहर खाते ही हैं. कई लोगों में हमारे यहाँ अब एक ट्रेंड बन गया है कि डिनर में वैरायटी होनी चाहिए. आई हैव लर्न कि वो जैसे मैं पूछता हूँ एंड वेरी इनोसेंटली मैं उन्हें जब पूछता हूँ कि अच्छा आप डिनर में क्या लेते हैं, मैं लिखते रहता हूँ, कहते हैं आइटम्स रहते हैं. So I said, now I understand. I just write items because I now know items का मतलब क्या होगा कि सेव पूरी, पानी पूरी, पाव भाजी, पिज्जा, इनको ही आइटम्स, वैरायटी होनी चाहिए. इन सारे फूड को जिनका मैंने अभी नाम लिया, आप अगर एग्जामिन करेंगे कि इसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी है, राइट, हमारी बहुत कम है. और एक क्रूशियल समय जब आपको अच्छे एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये अगर आप कि रोजमर्रा की जिंदगी, if this is your daily life, definitely there will be compromise. So I was talking with this gentleman and I told him that to me, disease means compensation of nutrition. Somewhere certain thing has been compensated. That's what has given rise to a certain condition. So as you speak of PCOS, PCOD, it's a hormonal imbalance, right? क्योंकि उस वक्त उस एज में बॉडी हार्मोनल इम्बैलेंस को सबसे पहले एक्सप्रेस ओवेरियन लेवल पे कर पाएगी या थायराइड लेवल पे कर पाएगी. सेम चीज अगर कंटिन्यू होने लग जाए तो वो ऑस्टियोपोरोटिक कंडीशंस की तरफ लेकर के जाते हैं. तब बाद में मिड एज्ड वुमेन, व्हाई डू दे स्टार्ट टू फील वीक,
Why do they start to feel that they've become prone to inflammation? Osteoarthritis हो जा रहा है या ऐसे inflammatory condition. The reason is hormone. So if we are speaking of a woman, we need to understand that hormone needs to be nourished, like for them to remain balanced. उन्हें nourishment कहाँ से आएगी? A lot of micronutrients, high on antioxidant food जो हमारे fruits में है. We need to examine हम दिन भर में कितने fruits खाते हैं, right? हमारे micronutrient का source कहाँ पे है, हमारे अच्छे प्रोटीन का सोर्स कहाँ पे है. मुझे लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है न्यूट्रिएंट की, नरिशमेंट की, हमें उसे अपने आप के लिए थोड़ी सी और रिफाइन करनी चाहिए. आई थिंक मेरे लिए एक बहुत बड़ा टेक अवे ये भी है शैलेंद्र जी कि अगर ये बीमारियां ना भी हो, बट एज एन इंडिविजुअल अगर आप ये बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, आप प्रिवेंट करना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल है. आप ठीक टाइम पे सोइए, ठीक टाइम पे उठिए, आप न्यूट्रिशनस फूड खाइए. हर बार आपके सामने जब आपकी खाने की प्लेट हो, आप पूछिए कि इसमें मेरे अंदर न्यूट्रिशन क्या जा रहा है, रादर देन वरिंग अबाउट कि इसमें कैलोरीज क्या जा रही है. द क्वेश्चन नीड्स टू बी पर कैलोरी न्यूट्रिशन कितना जा रहा है. That's extremely important. At the same time, to not cut this, but I feel there is another dimension maybe we should collectively address and also look into. That's emotional well-being. So many times, because food is the source of nourishment, a lot of us are so anxious, depressed. We don't feel the best, right? Emotionally, we are not very, very good. An emotionally low person. So what happens is, why do we crave for some food like this? The reason is very simple. Deep down, like really deep down at our very core, each person wants to feel happy, right? So हमें जब हमारे लाइफ में, हमारे रिलेशनशिप से, हमारे करियर से, हमारे वर्क से, हमारे एनवायरनमेंट से हैप्पीनेस नहीं मिलती, तो हम लाइक यू आर फीलिंग अ सर्टेन वे इन द हार्ट, आप दिल में तो दुखी हैं, आपके बॉडी का जो सेल है वो कहता है आपको दुखी रहना, आप दुखी रहो. आई डोंट वांट टू बी अनहैप्पी, आई वांट माय हैप्पीनेस. सो फॉर इट्स हैप्पीनेस इट क्रिएट्स क्रेविंग. It then calls for, like, okay, then let the sev puri come, let the pizza Meetha. come, meetha. Sugar craving. Actually, everything you crave for can be traced back to what kind of depression you have. Wow. A certain kind of nutritive depletion, a certain kind of emotional depletion, or a certain kind of anxiety depletion. So these things, so I feel it's the time and age where we are, where there is corrosive competition. It's a very toxic competitiveness that is created, making people run so much, and the environment around us is extremely stressful. Like they say, stress is contagious. We are passing that on. So some kind of upliftment is needed. Food provides that upliftment. So how do we break this? A balance is required. That we can understand. Maybe I have a category. I keep doing these small experiments and creating categories of food, and I have this category which I call the junk nourishment, where you are eating healthy food but a super amazing tastier version. But to be able to do that, हमें थोड़ा invested होना होगा. I remember I had again called you one day and said, शैलेंद्र जी बहुत sugar craving हो रही है, जी. and I'm not able to control. And I remember आपके questions around emotional well-being थे तब. राय जी. And your reply was, अच्छा आप शाम को एक glass pineapple juice पी लो. Correct. I did that, and मैं यहाँ पे I can say that because I experienced it. I felt that जो मुझे craving थी वो मिल गया, और अब मुझे और गंदी चीजें खाने की जरूरत नहीं है. It broke your pattern. It did help break the pattern. So I feel healthier, nourishing, and tasty food. So the problem that we need to solve is actually at the kitchen level. How do we make healthy food tasty?
so maybe all our chefs, mothers, a lot of kind of health enthusiasts should become interested in making healthy food, healing food tasty, and maybe we should have more such outlets. हमारे restaurants, हमारे जो cinema घर हैं, हमारे जो theaters हैं, उसके बाहर healthier versions of tasty food मिलने लग जाए, so our nation will be capital of something else. सो शैलेंद्र जी, इन सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस में हमने समझा कि क्या पैटर्न्स है, फूड का इम्पोर्टेंस, लाइफस्टाइल का इम्पोर्टेंस। अब चलते दवाइयों पे। आयुर्वेद में मेडिसिन क्या रोल प्ले करती है फॉर दीज लाइफस्टाइल I डिजीजेस? want to say this is my most favorite question of this day today. For to help you understand, जी, ये समझाने के लिए मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना होगा, ओके? I want to help you understand आयुर्वेदा, कि हम बॉडी को किस तरह से आयुर्वेद दिखता है इन जस्ट 2 minutes. जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि आयुर्वेद के दृष्टिकोण में शरीर को कैसे देखा जाता है, उसके अंदर क्या हो रहा है, तब आप जान पाएंगे कि उसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है कि हमारा जो पूरा बॉडी है वो 7 तरह के टिश्यूज से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है. उसे कहते हैं सप्त धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. ओके, वी पार्क इट हियर कि ये पूरे स्ट्रक्चर को, पूरा स्ट्रक्चर इससे बनता है. इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 तरह के फोर्सेस मूव करते हैं जिनसे हमारे बॉडी की सारी फंक्शनिंग होती है. इन फोर्सेस के नाम क्या है? वात, पित्त, कफ. वात सारे मूवमेंट का काम करता है. पित्त वार्मथ का, डाइजेशन का काम करता है. और कफ स्टेबिलिटी और ग्रोथ का काम करता है. पित्त का ही एक हिस्सा है अग्नि, लेकिन हम वात पित्त के और भी ढेर सारे काम होते हैं, अग्नि का सिर्फ एक ही काम होता है. तो हम इन फोर्सेस से एक और फोर्स को सेपरेट करके रख लेंगे कि द थर्ड कॉन्सेप्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज द अग्नि, द कन्वर्जन फैक्टर. जैसे हम दाल, चावल, रोटी, सब्जी जो खाते हैं, लेकिन आप अपने ब्लड टेस्ट करेंगे तो उसमें थोड़ी आपको दाल चावल दिखेगा, आपको कुछ और तत्व दिखेंगे. आपके फूड को उस तत्व में कन्वर्ट करने वाला जो फैक्टर है वो है अग्नि. राइट? सो ये अग्नि कई लेवल्स पे प्रेजेंट होता है. एक तो गट लेवल पे जिसे जाठर अग्नि कहते हैं, धातुओं के लेवल पे उसे धातु अग्नि कहते हैं. सो बाय एंड लार्ज सभी को इतना तक तो पता ही है कि सप्तधातु, त्रिदोष, अग्नि. लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जरूरी है जिसको समझने से आप ऑलमोस्ट सारा आयुर्वेदिक अप्रोच समझ सकेंगे. लेट्स से कि ये सारे जो धातु हैं, रस, रक्त, मांस, ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स को, अलग बॉडी पार्ट्स को क्रिएट करते हैं. लेकिन ये जो बॉडी पार्ट्स हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. All the different organs and tissues in the body are communicating with each other. वो ये communication किसके थ्रू करते हैं? Channels. Exactly. It's called स्रोतस. That's the right word. Channels or streams you can use. So if you can visualize that our body is made up of many different kinds of channels. To be specific, they say there are 13 kind of channels. Right? Strotas. One main channel is the gut. Gut also is a channel. Right? उसे महास्त्रोतस कहते हैं. So, कोई भी डिजीज होने के लिए स्त्रोतो अवरोध बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लॉकेज ऑफ द चैनल. अगर मेरे सारे चैनल्स ठीक से फंक्शन कर रहे हो तो बीमारी नहीं होगी. अगर मेरे सारे चैनल्स एग्जैक्टली खुले हों. खुले हैं, देन सारे चैनल्स खुले होने से होगा क्या? जो सप्लाई चेन है, किन चीजों का सप्लाई, सर्कुलेशन जो आपका होता है, राइट? जैसे आप अगर ये बॉडी को खोल करके अगर देखेंगे तो शायद जिस तरह से आयुर्वेद ने चैनल्स बताए वो चैनल्स विजिबल नहीं होंगे. लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में भी ऐसे चैनल्स के बारे में बातचीत कही गई है जो विजिबल नहीं है.
इनफैक्ट है ही नहीं। जैसे एंडोक्राइन सिस्टम जो है उसे डक्टलेस सिस्टम कहा जाता है, यानी वहां डक्ट नहीं है लेकिन पाथवे है। सो ये जो चैनल्स हैं ये एक तरह से सटल भी हैं हमारे बॉडी में। जो पैथोजेनेसिस है, जो डिजीज स्टेट है, एलिमेंट व्याधि जब होती है तो वो तब होती है जब स्त्रोतो अवरोध होता है। आप जो भी कर रहे हैं आपकी, तो आपकी अग्नि मंद होने की वजह से, आपके गलत आचरण की वजह से, सही खाना पीना नहीं खाने की वजह से, जब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्त्रोतस में अवरोध आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, तो वो एक सर्टेन तरीके के मैनिफेस्ट जो होता है वो एक डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन दैट यू आस्क कि मेडिसिन क्या रोल प्ले करती है। मेडिसिन 4 रोल प्ले करती है। ओके, मेडिसिन जो अग्नि बुझ गई है उसे जागृत करती है, यानी जो कन्वर्जन फैक्टर है, जो टॉक्सिक है, आपके टॉक्सिसिटी, इनडाइजेस्टेड जो फूड है या टॉक्सिसिटी है, उसको कन्वर्ट करने का काम शुरू करती है। देन कई मेडिसिन स्त्रोतस जो अवरोध है उसको काटने का काम करते हैं। स्त्रोतोरोध नाश, यानी वो शोधन, क्लियरिंग अप, ब्लॉकेज को क्लीन ब्लॉकेज को क्लियर अप करने का काम करते हैं। फिर कुछ हर्ब्स जो हैं, जो हमारे जो धातु हैं, जो सेल्स, टिश्यूज हैं, कुछ देर पहले मैं बल, स्ट्रेंथ की बात कर रहा था। धातुओं में एक अपनी शक्ति होती है, बल होती है। वो बल, इट इज रिफ्लेक्टेड इन योर एंड्योरेंस लेवल, इट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टेड इन योर इम्यूनिटी लेवल। हम कहते हैं ना कि मेरी इम्यूनिटी पावर कम हो गई। अब वो पावर वर्ड यूज क्यों कर रहे हैं? यू आर अग्रीइंग दैट अ सर्टेन स्ट्रेंथ हैज डिमिनिश्ड। पहला काम था अग्नि को प्रदूषित करना, दूसरा था स्त्रोतोरोध नाश करना। ये जो स्त्रोतस ब्लॉक चैनल्स हैं उनको क्लियर अप करते रहना। तीसरा है धातु शिथिलता, यानी धातुओं में वापस जो एकदम लिस्टलेस हो गए, उस धातु में वापस उनके टोन को वापस ले आना, उनके बल को वापस लेकर के आना। और फिर चौथा काम है अनुलोम करना, यानी जो भी टॉक्सिन्स हैं जहां कहीं भी स्टक थे, ब्रिंगिंग इट बैक टू इट्स क्लोजेस्ट आउटलेट एंड लेटिंग इट आउट फ्रॉम द बॉडी। सो आपके सर्कुलेशन को रिस्टोर कर देना। ये सारा काम जब एक साथ होता है तो उसे कहते हैं रसायन, रिजुवनेशन। वाओ, So ना ब्यूटीफुल वर्ड है। this is the mechanism of Ayurveda treatment जी। थैंक यू सो मच शैलेंद्र जी ये शेयर करने के लिए। 2 और क्वेश्चन है मुझे दवाइयों को लेके आयुर्वेद में। मैंने हमारे त्राया कस्टमर्स से भी सुना है कि जब दवाइयाँ मिलती हैं तो इतनी सारी क्यों हैं? जैसे हेयर रस हम देते हैं 2 सुबह 2 रात। सो आयुर्वेदिक दवाई जब वो खाते हैं, एलोपैथी की छोटी सी एक पिल होती है। आयुर्वेदा में इतना सारा मुझे ये 4 बड़ी-बड़ी गोलियाँ खानी है। कुछ रीजंस हैं, उस वो छोटे दिख सकते हैं। अगर हम उनके जो फॉर्म्स हों उस पे वर्क कर सकें, लाइक जैसे अगर आप एक्सट्रैक्ट कोई अगर यूज करते हैं तो हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी कम हो जाए, लेकिन द फॉर्म ऑफ ऑल्सो टेकिंग द मेडिसिन, गिविंग ऑफ द मेडिसिन विल बी वेरी डिफरेंट। हाउएवर, what happens is as the form changes, the potency increases. At Traya, what has happened so far, the interaction has been online. So the most important thing we had to take care, हमें सबसे पहली बात त्रया के मेडिसिन देते वक्त एक ध्यान रखनी थी दैट इट इज सेफ। और अगर हम हाई पोटेंट अगर मेडिसिन दे भी, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो इंडिविजुअल एक्शन रिस्पॉन्स कैसा होगा, वी डिड नॉट वांट टू टेक दैट काइंड ऑफ चांस। सो वी वेंट विथ दैट विच इज द सेफेस्ट वे ऑफ टेकिंग द मेडिसिन, विच इज एज द हर्ब। हाँ, सो हर्ब्स को ही हर्ब्स जैसा है एज इट इज, उसे सुखा करके पाउडर फॉर्म में क्रिएट करके, पाउडर्ड हर्ब्स को मिक्स करके आपने उसको टिकिया बना दी, टैबलेट बना दी। इसीलिए वो दिखने में ज़्यादा हैं, क्वांटिटी में, साइजेस में बड़े हैं, बट नॉट दैट इट हैज़ टू बी ओनली लाइक दैट। इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी reduced, but at the same time ji, they are not chemicals. They will work through a certain quantity.
शैलेंद्र जी, दूसरी चीज़ जो मैं सुनती हूँ आयुर्वेद को लेके, 2 तरह के लोग हैं। एक जो हाँ, ये हर्ब्स है, ये नेचुरल है, मैं इसे लेना चाहूँगी। और दूसरे कि ये मैंने कभी लिया नहीं है और ये इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये किडनी खराब हो सकती है, इसमें मेटल्स होते हैं। तो ये आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या कुछ आयुर्वेदिक यहाँ पे दवाइयों 2 बातें कर रहे हैं हम। एक तो साइड इफ़ेक्ट्स की पहले बात करते हैं। आप बहुत ढेर सारा चावल खाइए तो आप देख लेंगे आपको कितना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। कोई भी चीज़ उसकी मात्रा से ज़्यादा अगर हो जाए, तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे ही। तो जो हर्ब्स लिया जा रहा है वो सही मात्रा में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, वो एक बात है। दूसरी बात है, क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट पहले करती है। कई बार क्या होता है, जो हर्ब्स हम जो लेते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं, उसका टेस्ट जो है वो इट्स वी आर नॉट यूज्ड टू, आवर स्टमक इज नॉट यूज्ड टू दैट। सो इनिशियली उसे हो सकता है कुछ कुछ लोगों में कि वो एक डिस्कम्फर्ट क्रिएट करे। लेकिन आप अगर अपने आप को थोड़ी सी एक अगर आदत डालें, उसे रेगुलराइज कर दें, तो आप देखेंगे कि जो आपको इनिशियली स्ट्रांग डिस्कम्फर्ट लग रहा था, जिसे आप सोकॉल्ड साइड इफेक्ट का नाम दे रहे थे, वो डिस्कम्फर्ट चला जाएगा। ये तो एलोपैथ के भी कई मेडिसिन के साथ लगता है कि आप खाने के बाद आपको नौशिया, वॉमिट, गैस्ट्रिक इरिटेशन, मेटालिक ब्लोटिंग। टेस्ट, ब्लोटिंग, ये सब होता है। लेकिन एक हमारे शरीर में सबसे अमेजिंग एबिलिटी है adaptability. If you trust that, allow your body, maybe what you can do is start with a smaller dose, test dosage, and then slowly come to the optimized dosage. अब तो साइड इफेक्ट्स बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी बात आपने जो कही, मेटल और भस्म की मेटालिक होते हैं और मेटल टॉक्सिसिटी पाई गई है। भस्म मेटल्स नहीं होते, मेटल इनऑर्गेनिक होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए अभी ये लोहा है या कॉपर है, मैं उसे अगर खा लूं, वो इनऑर्गेनिक है। जिन विधियों से आयुर्वेद ने मेटल्स को भस्म बनाया, या दूसरे नॉन मेटल्स को भी जो भस्म बनाते हैं, वो इनऑर्गेनिक को पूरी तरह ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर ये कन्वर्जन कंप्लीट नहीं है, तब वो मेटल ही है। So the fault is in the making, the pharmacies, the manufacturing, not in Ayurveda. Ayurveda has already said, Ayurveda was the first to propose how to use cannabis, marijuana, etc. all of that, कि उनको proper आप उनके purification process, it has used almost every kind of aconite से लेकर के दूसरे अलग poisons को use करते हैं, लेकिन to treat a lot of conditions. But when they have gone through thorough purification processes, Ayurveda cannot be blamed if the agencies which are handling this, their practices are not thorough. Unfortunately, Ayurveda suffers. However, but let me tell you, this is not to protect Ayurveda or for Ayurveda. I was working on a project, and where we learned the maximum death globally is due to the medicine side effects, the allopath medicine side effects. They've published it. It is out there. इतने ढेर सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो रिएक्शंस हुए हैं, हम देखते हैं अभी अमेरिका में वो सर्टेन ड्रग बैन हो गया, फिर ये सर्टेन मेडिसिन बैन हो गई। 15-15 साल, 20-20 साल जाने के बाद फिर पता चलता है कि ओ माय गॉड, दिस इज कैंसरस। एक सिंपल सी एसिडिटी को ट्रीट करने वाली मेडिसिन ऑल ओवर वर्ल्ड बैन हो चुकी है, बिकॉज it was cancerous, carcinogenic, right? The Ayurveda, even if they have used metallic products, is safe and has been treating a lot of severe conditions with good results. जी शैलेंद्र जी, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, लास्ट सेगमेंट। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं आपके लिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, आप प्लीज़ आंसर दीजिए। डॉक्टर शैलेंद्र जी, मैंने कई लोगों को आयुर्वेद से क्योर होते हुए सुना है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स को ये भी कहते हुए सुना है कि आयुर्वेदा सूडो साइंस और एक स्कैम है।
मैं प्री डायबिटिक हूँ और आयुर्वेद ट्रीटमेंट को लेकर कंफ्यूज्ड भी हूँ, क्या मुझे ये लेना चाहिए? ऑफ कोर्स लेना चाहिए। आई थिंक सूडो साइंस का तो सवाल ही नहीं उठता। इट्स अ वेरी एस्टैब्लिश्ड साइंस। नॉट जस्ट दैट, ग्लोबली इसका जो एक्सेप्टेंस बढ़ रहा है और इंटरनेशनली जितने कंट्रीज में अब लोग आयुर्वेदा को अडॉप्ट कर रहे हैं, यू शुड, इफ यू फाउंड द राइट डॉक्टर, you should not get concerned, like must go ahead. गॉट इट। हेलो सर, आपकी एक्सप्लेनेशन की वजह से मैंने समझा कि मेरा कफ दोषा है। मैंने जानना चाहती हूँ कि क्या कफ टाइप वालों के लिए एक अलग हेयर केयर रूटीन होता है? कफ या वात या कोई भी प्रकृति के लिए हेयर केयर रूटीन उतना नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो विकृति के लिए है, प्राकृति के लिए नहीं है। सो अगर आप कफ प्रकृति के भी हैं तो भी सिमिलर हेयर केयर रूटीन आपके लिए सफिशिएंट है एंड इट्स गुड इनफ। डॉक्टर शैलेंद्र, मैंने रिसेंटली एक रील देखी कि लेफ्ट ओवर राइस खाने से फूड पॉइजनिंग और गैस्ट्रो इश्यूज होते हैं। क्या ये सच है? या कुछ एक ऐसे फूड हैं जिनमें मोल्ड का ग्रोथ बहुत रैपिड होता है। सो लेफ्ट ओवर जो राइस है उनमें मोल्ड करके एक ऑर्गेनिज्म होता है जी, उसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, यानी वो फंगल तरह का ये रहेगा। सो इसलिए बासी खाना जो कहा गया है, या थोड़ी देर मतलब कुक करने के बाद अगर एक्सपोज रह जाए तो उसे क्यों नहीं खाना चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न है। एंड डेफिनेटली योर स्टमक, मीनिंग इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल इट कैन लीड टू gastritis or even certain severe digestive problems. Got it. Ayurveda suggests that one should not fast for more than 6 hours after having a meal. Does this mean that we should have fruits in between meals? No, I have not come across this kind of Ayurvedic suggestion. It definitely creates an eating window and fasting window. Then, when it is about in between meals, there are directions, but not that it should be beyond 6 hours or less than 6 hours. It actually should be based on the kind of, like, your ability to digest food and the symptoms of you having digested your food. So they have said laghavam, udgar shuddhi, pipasa, meaning you start, and then bal, you start to feel very energetic, there is lightness. These are the signs that you have digested your previous meals. There is burp clearance, and so once you know that you've digested your previous food, maybe you are ready for your next meal. Doctor, I have kapha and pitta dosha. This means that while I usually prefer to engage in slow activities, I sometimes experience sudden bursts of intense emotions. I believe that kapha dosha is more dominant in me because I identify more with its characteristics. Should I prioritize balancing my kapha dosha first and then focus on balancing my pitta dosha later? So while we speak about Prakriti and the Vata, Pitta, Kapha Prakriti and the combinations of this, in Prakriti also there are subdivisions. One is the Sharir Prakriti and the second is the Manas Prakriti. About the Sattva, Rajat, Tama, if you are experiencing a lot of emotions, there is every possibility that there is more of a Rajasic guna, and maybe balance should be is needed between rajas and sattva. So for some time this person should keep the vata pitta kapha aside and maybe dwell or look more deeper into the rajas and the sattva aspect. I had been drinking amla juice regularly for a few days without any issues, but on the fourth day, I vomited within 15 to 20 minutes of consuming it on an empty stomach. I searched on Google and found out that I might be allergic to amla. However, I usually eat dry amla candy or murabba without feeling sick. What do you suggest? Being allergic is not possible, and throwing up is not a sign of allergy.
allergy signs are that you would develop rashes, and the allergy signs are very different. It is quite possible that having amla juice, maybe the quantity, etc., or we don't know if it was freshly extracted. Even if not, our digestive system, our stomach may react to any kind of raw juice. That's why they have recommended, when following the juicing principles, you should not have just the green, and have a small neutralizing agent, like maybe if it can be mixed with some kind of carrot juice, or ashgard juice, or pomegranate juice. So the thumb rule is that the green should be 30% and the neutralizing agent should be 70% in any kind of juicing. So even people who have Karela shots and other kind of green juices, they should make sure, because all vegetables, we are not supposed to be eating the juice of it. We are supposed to eat the whole vegetable. When you only drink the juice, you are drinking a high concentrate of it, and your stomach may not be ready, and specifically the empty stomach. So the rule of juicing is that 70% should be the neutralizing agent. Fair. Dr. Shailendra, I am pregnant with my first child, and I started reading on the internet about how the number of C-section deliveries have increased. Few years, and C-section deliveries may affect my baby's immunity. Is this true? Do C-section deliveries affect the genetics of my baby in any way? It if you so I'll recommend this lady to go deeper into reading and learning about the gut microbes, because the only difference between the C-section deliveries and a normal delivery is the amount of bacteria available to the child through a vaginal delivery, and in a C-section delivery, those things are completely missing. So there is a lot of work done based on the bacterial availability for the child and the immunity. Not just that, since the person mentioned the genetic aspect, 97% of who we become is only decided by the gut bacteria. So there, the genetic of the bacteria is more deciding in nature. So yes, there is a lot of truth in what the person is saying. वेरी इंटरेस्टिंग. हेलो सर, मुझे किसने बताया कि अगर मुझे मेरी वज़न बढ़ाना है तो मुझे खाने के बाद 30 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए. क्या ये सच है? आप क्या सजेस्ट करेंगे कि खाने और पानी में कितना गैप होना चाहिए? There's a shlok ji that says about water and food. Okay, that ajirne bheshajam vari, जीर्णे वारी बल प्रदम, भोजने तु amrutam vari, bhojan ante vish pradam. Which means when you have indigestion, then a person who has indigestion like problems, they must only drink boiled warm water, sips of warm water. Ajirne bheshajam vari. Vari means water, it acts like medicine. Jirne vari balapradam. When you have digested your food and then when you drink water, it gives you tremendous strength. Bhojane tu amrutam vari. While you are eating your food, if you drink small sip with every morsel, but they speak about having sips of warm water, that is like bhojane tu amrutam vari. That water is like amrit. Bhojan ante vish pradam. If you have first only eaten your food and then in the end, if you are drinking just water, that is vishprad, it is toxic. So the other sciences also, when they explain this, what they are trying to say that the food that we eat, okay, first mastication, chewing is extremely important to not just soften it, but also to mix it with the enzymes present, that we have the ptyalin and other enzymes which are digesting the carbohydrates, and the bacterial mixture that happens. So the salivation and the chewing softens the bolus. That bolus, when it goes to your stomach, if you are having smaller sips of water, further helps keep it soft. And on that soft food, it is easier for your
digestive enzymes in the stomach, the acids, etc., to digest it well. Like if in a different scenario where you have just only eaten, तो एक solid जमा हो जाता है, and then you drink water where you create a different layer of just water, then that is very difficult for the stomach and your environment there to process it. सर मुझे इथैसिस वल्गैरिस नाम की जेनेटिक डिजीज़ है और मेरी स्किन विंटर में बहुत ज़्यादा फटने लगती है, बिल्कुल स्नेक की स्किन की तरह, और जाती और समर में ठीक हो जाती है। और मेरी फैमिली से किसी को ये डिजीज़ नहीं है, क्या आयुर्वेदा में इसके लिए कोई थेरेपी है? 100% this is completely reversible, curable also, if the person can understand hydration better, कि किस तरह से बॉडी को हाइड्रेट कर सकें. बट बाय हाइड्रेशन आई डोंट मीन जस्ट ओनली वाटर. सही तरह के फ्लूइड्स अगर उनके बॉडी में जाएं, अगर उनकी अग्नि की कैपेसिटी अच्छी है, देन दे नीड टू स्टार्ट टू इंक्लूड द राइट काइंड ऑफ लिपिड, या घी लेना शुरू करें, या कोकोनट ऑयल उनके फूड में प्रेजेंट रहे. कोकोनट मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो इंटरनली हाइड्रेट करें, और एक्सटर्नली अगर अभ्यंग करना शुरू कर दें कोकोनट ऑयल से, सेसमी ऑयल से, या मेडिकेटेड ऑयल भी अवेलेबल है, और उसे रेगुलरली करें. सो ये प्रॉब्लम कंट्रोल होने के साथ साथ एकदम पूरी रिवर्स भी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी. सर मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, हमेशा खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है. मैं अपनी डाइट में फाइबर और प्रोबायोटिक इंक्लूड कर लिया है, लेकिन फिर भी मेरे पेट में जलन रहती है. क्या मुझे नॉनवेज पूरी तरह क्विट कर देना चाहिए? मे बी नॉनवेज ना क्विट करके सबसे पहली बात उन्हें उनके फूड के ऑर्डर को देखना चाहिए. उन्हें अपने ब्रेकफास्ट को एकदम लाइट कर देना चाहिए, और ब्रेकफास्ट में कुछ दिनों तक सिर्फ फ्रूट्स लें, हल्के फ्रूट्स. और लंच और डिनर को भी से भी ग्रेन्स के क्वांटिटी को 50 to 60% हटा दें. ज़्यादा करके वेजिटेबल पोर्शंस अगर लेंगे और नॉन स्पाइसी, नॉन फ्राइड अगर लें, तो पॉसिबल है कि 2 to 3 वीक्स में कंडीशन हील हो जाएगा. Okay, great. That was जी. the last question. All Thank right, you जी. so much, Shailendra ji, for such an amazing episode. थैंक यू सो वेरी I मच. hope that people find this useful and वो अपने लाइफस्टाइल डिजीजेस को और एक नए एंगल से देखना शुरू करें और उससे मुक्ति पाएं. इंडीड सलोनी जी, थैंक यू सो मच. Thank you.